we call valence bond here in short as what? PBT. PBT. Very good. VBT. So there are some postulates of valence bond theory. Postulates matlab assumption, right? The first postulate of valence bond theory is only half-filled orbitals can take part in covalent bond formation. See, valence bond theory is only for covalent bond. Okay, only for covalent bond we use valence bond theory. So covalent bond is formed only by half-filled orbitals. Only half-filled orbitals can participate or can take part in formation of covalent bond. I explained that last lecture, right? So let us take examples one more time. So hydrogen atomic number 1. I told you hydrogen 1s1. Tell me S subshell has how many orbitals? 1. I draw your S orbital. Okay. How many electrons are there? 2. No, यहाँ पे अब S एक ही है ना, यहाँ पे 1 है. So 2 के कैपेसिटी उसका पर इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो this orbital is Half cell. so this orbital can take part in bond formation, right? Yes. Okay. Yes. If you take beryllium atomic number 4, so 1s2 2s2, right? So Yes. S subshell has 1 orbital, 2 electrons. Again S subshell has 1 orbital, 2 electrons. So class, tell me both the orbitals are what here? Full fill. Full, यहाँ पे complete, fully. completely filled या फिर full Yeah, filled. completely. So boron can take part in covalent bond or not? No, sir. No. तो यहाँ पे half filled orbital नहीं, तो उसका covalent bond में part नहीं ले सकता according to VBT. But if I like fluorine atomic number 9. 9. 1s2 2s2 2p 2p6. 2p6. 2p5 No, 2p6 not. 2p5 काउंट करो. 5, 5. हाँ 2p5. 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना. हाँ 2p5. तो S subshell has 1 orbital, 10 2 electrons. Again S subshell has only 1 orbital, 2 electron full filled. P subshell has 3 orbitals, px, py and pz, right? Electrons are 5. So 1 2 3 4 5. तो क्या फ्लोरीन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने के लिए? हाँ सर. कौन सा है? 2pz. 2pz. So that orbital can take part in bond formation. तो पहला पोस्टुलेट क्लियर है सब लोग को? हाँ सर. Yes. So only half filled orbitals can take part in formation of covalent bond. Okay. अभी बॉन्ड बनता कैसे है तो देखते हैं हम लोग. तो सपोज वी हैव हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, right? 1s 1. Okay, what is shape of s orbital? Anybody? s orbital का शेप क्या होता है? आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम होना चाहिए. What is shape of s orbital? S orbital is spherical in shape, right? Yes sir. Okay, अगर आपको मालूम नहीं है तो याद रखो s orbital का शेप क्या होता है? Spherical. Spherical. What is shape of p orbital? Dumbbell. Dumbbell. What is shape of d orbital? Double dumbbell, right? Double dumbbell. Yes. तो spherical shape s orbital, dumbbell shape p orbital and double dumbbell shape d orbital, ना ऐसे होता है शेप. ओके. हाँ सर. हाइड्रोजन के पास एक ही सबशेल है. कौन सा? s subshell. S It has subshell. only one orbital. Which orbital? S orbital. S. And the shape of that s orbital is spherical. Spherical. हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल है. ठीक है. सेंटर में कौन है इसके? न्यूक्लियस, राइट?
सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके पास s ऑर्बिटल है, ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. So I show this electron like this. Okay. Now I take one more hydrogen. Again, atomic number 1, 1s, 1, right? Yes, sir. Okay. So if I take another hydrogen here, दूसरा हाइड्रोजन है। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट लेगा या नहीं लेगा? आपका आंसर? लेगा सर। क्यों? उसका ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड है। ओके, हाइड्रोजन में 2, क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट ले सकता है? यस। हाँ, क्योंकि उसका ऑर्बिटल भी कैसा है? एस ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड। 2 क्या कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, बराबर है? यस। तो ये हाइड्रोजन आइटम, ये हाइड्रोजन आइटम, उसके पास भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये दूसरा हाइड्रोजन आइटम, उसके पास भी क्या है? हाफ हाफ फिल्ड फिल्ड ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल। अभी क्या होता है जब बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो आपस में क्या होता है? उनके टक्कर होता है। देख, कोलाइड विद ईच अदर, समझता है? टक्कर, यस सर। देख, कोलाइड विद ईच अदर। तो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन ओवरलैप विद हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के हाफ एस ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैप करता है, राइट। ठीक है? तो जब ओवरलैप होता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों ने क्या किया? ओवरलैप किया, राइट? इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ पे शेयर हो गया, राइट? बराबर है एवरीवन? तो अभी क्या बन गया? H डैश H, H डैश H क्या होगा बच्चे लोग? दैट इज H2 मॉलिक्यूल, बराबर है? यस सर। तो क्लास बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब टक्कर करता है, ये समझा आपको? यस यस। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत केयरफुल देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसा था? क्लॉकवाइज था, देखा है आपको? दिख रहा है? हाँ। और यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो उनका स्पिन कैसा है? अपोजिट है, राइट? यस। एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो एक का स्पिन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी तो क्लॉकवाइज। जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कोई भी दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों का स्पिन क्लॉकवाइज होता, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो उनके बीच में ओवरलैप नहीं होता, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है? तो वहां पे ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज एंटी स्पिन होना चाहिए। क्लॉकवाइज। प्लस ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इफ वन इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्लॉकवाइज, अदर हैज टू स्पिन एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो प्लस क्या क्या हुआ हमने आपको बताया। सबसे पहले तो द इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव, बोलो, नंबर 2 पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन्स Opposite spins. वेरी गुड, जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल। वैलेंस मतलब क्या? हम हमेशा कौन सा ऑर्बिटल की बात करते हैं? वैलेंस शेल के। बॉन्ड हमेशा वैलेंस वैलेंस। शेल में ही बनता है, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, याद होगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स मस्ट हैव क्या? ऑपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन। व्हाट इज अपोजिट स्पिन मींस? अगर एक इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है? क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसे करना चाहिए? Anti-clockwise. ओके क्लास, जब ओवरलैप होता है तब ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, राइट? अब इनका स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? दोनों सर। क्लास दोनों नहीं है। देखो, क्लॉकवाइज स्पिन एंटी क्लॉक स्पिन को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। क्या होता है? कैंसिल। कैंसिल कर देता है। तो क्लॉकवाइज स्पिन, देखो, एक स्पिन क्लॉकवाइज एक स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो स्पिन क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, राइट? तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पिन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पिन।
अभी इलेक्ट्रॉन ना क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, वो या एक जगह पे क्या रहेंगे, Stable. इस जगह पे ही रहेंगे वो। नाउ नाउ दे कैन नॉट स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझा आपको? तो देखो एक क्लॉकवाइज स्पिन एक एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट स्पिन क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन गेट न्यूट्रलाइज, राइट? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पिन टेक प्लेस। तो मैं बोलता हूँ ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड द अपोजिट स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट, बोलो opposite spin of electrons get Overlapped. neutralized. Neutralized. Opposite spin of electron get Neutralized. neutralized. ठीक है क्लास? जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो मुझे तो अब कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए या अनस्टेबल होने के लिए? Stable. ओके जो चीज स्टेबल होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा कम होता है बच्चे लोग। कम होता है। क्या देखो, मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। तो क्लास याद रखो, समझो हाइड्रोजन के पास एनर्जी है x, इसके पास कितना एनर्जी x है, और H2 के पास एनर्जी कितना y है, तो क्लास x प्लस x हमेशा y से क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों का एनर्जी जब बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी से ज्यादा ज्यादा होगा, मतलब मुझे बताओ इसका मतलब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ? अब देख के बोलो। समझो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जो इसका एनर्जी समझो कितना था, 50 था, से फॉर एग्जांपल ये 50 था, ये भी 50 था, और जब बॉन्ड बना तो H2 का एनर्जी समझो कितना है, 90 है। तो क्लास व्हाट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन 50 प्लस 50, 100. आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 90. तो क्लास क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुआ या गेन हुआ? Loss. लॉस हुआ। तो याद रखो बॉन्ड एक दिमाग में एकदम फिक्स करना हमेशा के लिए कि जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है, कम होता है. रिलीज होता है। ठीक है, जो दो आइटम बॉन्ड बनाते हैं वो अपना एनर्जी क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने से क्या होता है, सिस्टम बिकम Stable. ये याद रहेगा या कुछ और तरीके से बताओ आपको मैं? याद होगा. याद रहे। ठीक है, तो क्लास क्या बोला मैंने कि जब बॉन्ड बनता है, जब क्लास दूसरा एग्जैक्ट अपोजिट चीज को देखते हैं। क्लास अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो बाहर से एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड देखो एटम स्टेबल है, बॉन्ड जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है तो मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, बराबर ना? स्टेबल है इसलिए तो बॉन्ड बना रहा है। अगर आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा. देना पड़ेगा। तो प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, राइट? यस। और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। Exothermic. प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो क्लास जो लोग JEE या नीट के लिए पेपर कर रहे हैं तो याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज विच प्रोसेस, Endothermic. एंडोथर्मिक। जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब कोई Yes. बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं Yes. क्या बोलता हूँ यहाँ पे, एनर्जी इज रिलीज, राइट? Yes. Energy is released. मैं आपको सब दिखाऊंगा आपके टेक्स्ट बुक में अभी, जो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी इज रिलीज सेम वैसे लिखा होना चाहिए, एनर्जी इज रिलीज। अरे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग Bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग ओवरलैप, राइट? बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैप दोनों भी चलेगा, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ओवरलैप कम हुआ तो एनर्जी रिलीज कम होगा, राइट? और ओवरलैप ज्यादा हुआ तो एनर्जी रिलीज ज्यादा। ज्यादा. देखो दो कार है, कार नंबर 1 कार नंबर 2, क्लास अगर दोनों कार का एक्सीडेंट होता है, अगर दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो बहुत हाई स्पीड से वो कोलाइड करेंगे, राइट? तो एक्सीडेंट बड़ा होगा। और अगर कार का स्पीड कम होगा तो एक्सीडेंट छोटा होगा। Yes. तो एनर्जी रिलीज ज्यादा कब होगा, अगर कोलिजन क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? Strong. तो जितना ज्यादा हद तक कोलिजन होगा उतना एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट? Strong. ओके, जितना ओवरलैपिंग कम होगा उतना एनर्जी रिलीज कम होगा, उतना बॉन्ड क्या बनेगा, Come. कम स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, सो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट मतलब हद, राइट? कितने हद तक, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म। ठीक है,
Yes, sir. जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। हाँ, प्लस एक चीज और भी है, क्या कंप्लीट ओवरलैप पॉसिबल है? मैं इसका मतलब बताता हूँ, कंप्लीट ओवरलैप का मतलब बताता हूँ। प्लस ये जो देखो यहाँ पे दिखा था आपको, ये ओवरलैप वो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो क्लास ये हाइड्रोजन सब पूरा का पूरा इसके साथ ओवरलैप कर सकता है ऐसे पूरा इसके ऊपर? तो इसका रीजन है नहीं। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि दो न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे तब Collide. टच करेंगे, राइट? और न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होगा, ट्रिमेंडस Energy. रिपल्शन। रिपल्शन होगा बहुत, एक न्यूक्लियस पॉजिटिव दूसरा न्यूक्लियस भी क्या है पॉजिटिव, बाजू में रह सकते हैं ऐसे टच करके? No, sir. नहीं, नॉट पॉसिबल। तो कंप्लीट ओवरलैप कभी भी पॉसिबल नहीं, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस हम नहीं रह सकते, बिकॉज न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ टच करके नहीं रह सकता। तो आप क्या बोल सकते हो, ओवरलैप ज्यादा होगा उतना अच्छा है, पर 100% ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। देखो ओवरलैप ज्यादा होगा, देखो मैक्सिमम ओवरलैप ठीक है, ओके। प्लस अभी देखो इसका मैं बोलता हूँ, देखो ये ओवरलैप कम हुआ है, दिख रहा है आपको ये कम दिखा है, प्लस यहाँ पे ओवरलैप ज्यादा हो गया, राइट? ओवरलैप और ज्यादा हो गया। पर प्लस काम ऐसा करते करते आप पूरा एटम के ऊपर एटम रखोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. नहीं है। तो 100% ओवरलैप होता है नहीं होता कभी भी? No. 100% ओवरलैप इज नेवर पॉसिबल, ठीक है? 100% Yes. ओवरलैप कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ओके, कुछ और पॉइंट्स? तो बस मुझे तो एक एटम कितने बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एक एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, देखते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर 7, ये लास्ट टाइम को बता चुका हूं मैं, एक बार वापस। 1s2 2s2। So जितने वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने बॉन्ड ना. थोड़ा सा करेक्ट करो उसको, आपने करेक्ट दिया, थोड़ा सा करेक्ट करो उसको। वैलेंस शेल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर है, Unpaired. Yeah, yeah. बराबर ना? इलेक्ट्रॉन के फायदा अनपेड, मुझे तो अभी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3। 3. नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स। 3, ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 8. 1s2 2s2 2, 2p। 3, 4. 2 क्या आप p. बोल सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन बोलने के लिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है? दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल कैसे हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4, आप बोल सकते हैं आपके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, बराबर है? Yes, sir. या फिर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स। तो आपको इसके एग्जांपल, नाइट्रोजन का एग्जांपल है अमोनिया, दिख रहा है आपको, NH3 हाँ, sir. कितने बॉन्ड बनाता है, 3। ऑक्सीजन 3. का एग्जांपल वाटर कितने बॉन्ड बनाता है, 2. 2, बराबर है? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9. 1s2 2s2 2p 5। तो अगर मैं 1s 2s पूरा फुल फील्ड है, डायरेक्ट 2p की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, 1. 1, राइट? तो फ्लोरीन कैन फॉर्म हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड, 1, sir. 1 कोवैलेंट बॉन्ड। तो HF एग्जांपल, एक ही बॉन्ड बनता है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बराबर है? Yes. ओके, तो लास्ट नेक्स्ट चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताओ, समझो ये एक हाइड्रोजन, तो उसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और एक अदर हाइड्रोजन उसके पास भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, राइट? तो उन्होंने ओवरलैप किया और क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो ये सेंटर पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है? तो मैं बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या है, बोलो? अट्रैक्शन रिपल्शन? Attraction. अट्रैक्शन। चलो, ये इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन? Attraction, sir. अट्रैक्शन। और ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या है, Repulsion. रिपल्शन। तो यहाँ पे दोनों फोर्स है, कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स एंड Repulsion. रिपल्शन फोर्स। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट? और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, Repel. रिपेल करेंगे। तो प्लस यहाँ पे टग ऑफ वॉर वैसे हो जाएगा, रस्सी के जैसा हो गया, राइट? अट्रैक्शन भी और रिपल्शन Repulsion. भी। तो प्लस तो अट्रैक्शन रिपल्शन जब बैलेंस हो जाएंगे, राइट?
जितना अट्रैक्शन है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा तो एक जगह पे ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बराबर ना इसके और पास में जो और पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से, राइट? Yes, sir. और दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा रिपल्शन से, राइट? Yeah. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस इतना डिस्टेंस है कि जहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स क्या हो गया, परफेक्टली बैलेंस हो गया, राइट? जितना अट्रैक्शन फोर्स है दो न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी दो एटम के बीच में, उतना क्या है, Repulsion. बोलो, रिपल्शन फोर्स है। तो क्लास वो डिस्टेंस ए बी जहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो गया, तो क्लास उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, Bond length. बॉन्ड लेंथ। एवरीवन? Yes, sir. हाँ। तो क्लास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस ये मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिपल्शन। तो ऐसा ये जगह है डिस्टेंस ए बी जहाँ पे दो आइटम क्या फील करते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिपल्शन। Repulsion. ओके, एनी डाउट हियर? No, sir. ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। अगर मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया में कौन सा ऑर्बिटल है, सॉरी नाइट्रोजन, तो मेरे पास 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट? तो क्लास p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, px py एंड pz, राइट? Yes, sir. px py 3 ऑर्बिटल। तो क्लास मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ, एक उसका ऑर्बिटल है कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस पे, कौन सा, px, बराबर है? एक ऑर्बिटल कहाँ पे, Y. y एक्सिस पे, और एक ऑर्बिटल कहाँ पे, Z. z एक्सिस पे। तो इफ नाइट्रोजन फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन, तो वन बॉन्ड इज फॉर्म ऑन x एक्सिस, वन बॉन्ड इज फॉर्म ऑन y एक्सिस, वन बॉन्ड फॉर्म ऑन Z. z एक्सिस, बराबर है ना? क्योंकि देखो ये ऑर्बिटल कहाँ पे है, px ऑर्बिटल कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। py ऑर्बिटल कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो py ऑर्बिटल पे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। आपको माने हाफ पीरियड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ये समझते हैं आपको? Yes, sir. और एक ऑर्बिटल कहाँ पे, Z. z एक्सिस पे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा। तो एक हाइड्रोजन x एक्सिस, देखो ये आपको दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ये आपके पास ड्रॉ करता हूँ मैं, लेट मी ड्रॉ। ये आपका x एंड y एक्सिस से बता रहा है। ओके, तो बस आपका p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल कहाँ पे, x एक्सिस पे, राइट? हाफ पीरियड है, बराबर ना? क्या वो हाफ पीरियड है, बताओ मुझे, हाफ पीरियड है या नहीं है? Yes, sir. Half filled. ओके, हाइड्रोजन उसका ऑर्बिटल भी कैसा है, हाफ पीरियड है। s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हाफ पीरियड है ना। व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल, स्फेरिकल। Spherical. तब क्या हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है स्फेरिकली शेप, वो भी हाफ पीरियड है। ये दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा है, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लास जब ये हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा किसके ऊपर, p के साथ, ऐसा ओवरलैप करेगा, बराबर है? तो क्लास ये ओवरलैप कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, कौन से एक्सिस पे हो रहा है, X x axis. एक्सिस पे। तो क्लास बॉन्ड कहाँ पे बना, X. x एक्सिस पे। सिमिलरली p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ कहाँ पे ओवरलैप करेगा, y एक्सिस पे। Y axis. और p ऑर्बिटल कहाँ पे ओवरलैप करेगा, Z. z एक्सिस। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये एंगल कितना होना चाहिए आपको बताओ मुझे, ये एंगल कितना होना चाहिए? क्लास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर डैश टू ईच अदर, x y z एक्सिस आर म्यूचुअली Perpendicular. परपेंडिकुलर ना। तो एंगल कितना था उनके बीच में, 90. 90. 90 डिग्री। तो क्लास ये अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट? तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल शुड बी कितना, 90. ये वीबीडी प्रेडिक्ट करता है, हम लोग बाद में प्रूव करेंगे वीबीडी ने रॉन्ग प्रूव किया था, हम लोग इसकी बात भी करेंगे, पर फिलहाल वीबीडी क्या बोलता है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90। क्लाउड बॉन्ड एंगल, दो एंगल के इसमें जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Bond. बॉन्ड एंगल। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन, एक देखो आप दिखा, मैं दिखा, तो ये येलो कलर का एक बॉन्ड है और एक ग्रीन कलर का एक बॉन्ड है, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, Bond बॉन्ड angle. एंगल।
ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट कितना करता है वीबीटी? 90 डिग्री। क्यों बोलता है 90 डिग्री? क्योंकि एक बॉन्ड बना एक्स एक्सिस, एक बना वाई पे। प्लस सिमिलरली ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये भी बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एंड वाई के बीच में एंगल कितना होता है? 90। वाई एंड जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90। एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो ये तीनों एंगल कितने होने चाहिए? 90 90 90 ईच। ये समझा आपको या नहीं? Yes. ऐसे ये प्रेडिक्ट कौन करता है? वीबीटी बोलता है। क्लास बाद में हम प्रूव करेंगे वीबीटी रॉन्ग बोल रहा है, पर वीबीटी का ये पोस्टुलेट आपको पोस्टुलेट तो हमें देखना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. प्लस सिमिलर हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 बराबर है 1s2 2s2 2p4। तो px py इधर प्लस px तो पूरा फुल फील्ड है, राइट? Also, px ऑर्बिटल फील्ड है। py एंड pz कैसा है? हाफ फील्ड। टेल मी व्हाट इज एंगल बिटवीन py एंड pz ऑर्बिटल? PY भी फुलफिल्ड होगा ना, क्योंकि S है और उसकी कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है ना। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर कितना है? 8 1s2 2s2 इसमें भी 2p4। 2s2 2s2 की बात नहीं है, मैं हाँ 2p4 का 2s2 तो फुल फील्ड है, मैं p की बात कर रहा हूँ। ये इसकी बात करो। हाँ तो py कैसा है बोलो मुझे? हाफ फुल फील्ड या हाफ फील्ड? फील्ड एंड pz भी कैसा है? हाफ फील्ड हाफ फील्ड। एग्री करते हाफ हैं py फील्ड एंड pz यस हाफ फील्ड है? हाँ हाँ बोलिए ना। यस सर हम्म। तो क्लास py एंड pz के बीच में देखो, ये आपका y एक्सिस है। मैं यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन रखता हूँ, सेंटर में। सेंटर में ऑक्सीजन है, ठीक है? तो एक ऑर्बिटल कहाँ पे? y एक्सिस पे। और एक ऑर्बिटल कहाँ पे? z एक्सिस पे, राइट? तो जब बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, तो आपका ये py ऑर्बिटल है कौन सा एक्सिस पे? y एक्सिस पे, राइट? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप करके क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, बराबर है? हाइड्रोजन यहाँ से आके ओवरलैप करेगा किसके साथ? py के साथ, बराबर ना? यस सर ओके, सिमिलरली ये कौन सा ऑर्बिटल है? जेड ये pz ऑर्बिटल है, राइट? तो एक हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप करेगा, बराबर है? तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कौन सा एक्सिस पे? बॉन्ड बनेगा जेड एक्सिस पे। तो एक बॉन्ड बना y एक्सिस पे, एक बॉन्ड बना जेड एक्सिस एक्सिस पे। ओके, दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए बोलो? 90 90। तो वीबीटी क्या प्रेडिक्ट करता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट क्या करता है? बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, दिस एंगल शुड बी हाउ मच? 90 डिग्री 90 डिग्री। 22 बस वो रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहा है, पर प्रेडिक्ट तो कर रहा है कुछ तो। हाँ तो सर हाइड्रोजन, ये वो बाद में पता चलेगा वो रॉन्ग है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है। तो प्लस ये सब क्वेश्चन है किसके? वीबीटी के। BPT तो एक 2 मिनट दो मुझे, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर रखता हूँ और आई विल ओपन द टेक्स्ट बुक एंड देन we'll see all the postulates which are given in textbook. पेज नंबर देखना पड़ेगा मुझे। टेक्स्टबुक का पेज नंबर 64 64। Just a second. Something has gone wrong. Okay. 64 page. 64, 61, 62, 63, 64. Okay. स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्लास पहला पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? Read somebody first point, postulates of valence bond theory. A covalent bond is formed when the half-filled valence orbital of one atom overlaps with a half-filled valence orbital of another atom. Okay, what is half valence orbital? मतलब ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, राइट? Yes sir. Yes. और वो कैसा होना चाहिए? हाफ फील्ड भी होना चाहिए। तो हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम व्हेन ओवरलैप विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ Another atom, atom then only covalent bond is formed. formed, right? What is second requirement? पढ़ो second point.
Electrons in, The electrons in the half-filled valence orbitals must have opposite spin. what is the meaning of that? If one orbital contains electron with clockwise spin, other must contain electron with anti-clockwise, Anti-clockwise spin. जो ओवरलैप करने वाले, बराबर है? Yes, sir. Yes. अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करना चाहिए? Anti-clockwise. ओके, नेक्स्ट वन. During bond formation, the half-filled orbitals overlap and the opposite spin of the electrons get neutralized. The बराबर है? increase रुको रुको रुको, ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, तो इसको तोड़ तोड़ के सीखते हैं. आपको ये समझा? yes, जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज था, दूसरे का स्पिन कैसा था? anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज था. और जब वो क्या होता है, पेयर हो जाते हैं, तो उनका स्पिन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, राइट? Yes, sir. क्लॉकवाइज स्पिन एंटी क्लॉक स्पिन को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट? तो हाँ, when half orbitals of the atom overlap, the opposite spin of the electrons get neutralized. Okay, बस ये पॉइंट पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको. क्या उत्तर था? The increased electron density decreases the nuclear repulsion and the energy is released during overlap. just a minute. हेलो. Yes, हाँ, सॉरी. तो क्लास अब ये द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इसका मतलब बताता आपको, ठीक है? The increase in electron density decreases the nuclear repulsion and energy released during the overlap of the orbital. Okay, तो क्लास let us understand, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बट इतना भी नहीं. ओके क्लास, इलेक्ट्रॉन को हम लोग दो तरीके से ट्रीट करते हैं. कैसे? एज अ पार्टिकल, एज अ एनीबॉडी? Wave. पार्टिकल है, वेव. वेरी गुड. तो वी कैन ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, वी कैन ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. तो क्लास समझो, ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, राइट? ओके, इफ आई ट्रीट इलेक्ट्रॉन लाइक अ पार्टिकल, मैं इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल जैसे ट्रीट करता हूँ, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज इलेक्ट्रॉन, राइट? बता रहे? yes, sir. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट इफ आई ट्रीट इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव, अगर इलेक्ट्रॉन को वेव जैसा ट्रीट करता हूँ, तो मैं बोलूंगा द इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ये क्या क्लाउड है, बता रहे? समझते आपको? ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या दिख रहा है हम लोग इसका? इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव. इलेक्ट्रॉन समझो हम लोग, इलेक्ट्रॉन कैसे कंसीडर करें? कॉटन जैसा या फिर क्लाउड जैसा, समझा आपको? हाँ, sir. तो इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एक क्लाउड है अराउंड न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप एस ऑर्बिटल में. मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है, जिसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, ठीक है? प्लस जो ओवरलैप करेंगे, कौन? ये दो इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? तो Yes. इलेक्ट्रॉन है, दो आइटम जो ओवरलैप करेंगे, तो ये क्लाउड है ना? देखो केयरफुल देखो, टेक्स्ट बुक में ये पार्ट नहीं है आपके. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से कम होता जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा, बराबर ना? इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से भी कम होता जाएगा. तो क्लाउड मैक्सिमम क्लाउड कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे, बराबर? ओवरलैप हुआ है, बराबर? आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो क्लास इस रीजन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा. बढ़ गया. तो न्यूक्लियस को क्या कर रहा था? स्ट्रांगली रिपेल. पर क्लास बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो अभी दो न्यूक्लियस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे. वो न्यूक्लियर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? उनको दूर रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके इसका रिपल्शन कम करने की कोशिश कर रहा है. ये क्लियर है आपको? Yes. प्लस दिस पार्ट इज नॉट इन टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट है, देखो समझ लो. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग एक्चुअली. ये क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? कॉमन रीजन में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. Maximum. Yeah. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन द कॉमन रीजन, तो दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन क्या हो जाता है? कम. कम हो जाता है. एनी डाउट हियर? किसी को पूछना है? यू कैन आस्क मी अगेन. या नहीं डाउट वो भी बोलो.
ये क्लियर है, समझा आपको? So condition is electron should be in a cloud, right? नहीं, हाँ, इफ यू कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज लाइक अ क्लाउड, डेंसिटी बोलेंगे तो क्या होगा, बोलो डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? Mass upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, डेंसिटी मतलब स्पेस, एक्चुअली डेंसिटी मतलब होता है कॉम्पैक्टनेस, राइट? एक्चुअली देखा जाए तो डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कॉम्पैक्ट रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यहाँ पे कॉम्पैक्ट रह रहा है, इस रीजन में, राइट? दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इनका डेंसिटी बढ़ रहा है इस रीजन में, कॉमन रीजन में। क्लियर? Yes, sir. या फिर आप बोलोगे, देखो, या फिर आप डायरेक्ट बोलोगे दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, तो जो अगर यहाँ पे आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको दिखने का चांसेस कहाँ पे है? इस रीजन में ना, Bond. कॉमन रीजन में। Yes. तो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, राइट? Yeah. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे वो मैक्सिमम बताओ? दो न्यूक्लियस के बीच में। तो वहाँ उससे क्या हो गया कि न्यूक्लियस रिपल्शन क्या हो गया, कम होने के लिए हेल्प हुआ। Yes, sir. ओके, मुझे तो सिस्टम यहाँ पे स्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है? Stable, neutral. स्टेबल बन रहा है, क्योंकि आप न्यूक्लियस का रिपल्शन बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? कम कर रहा है, Repulsion कम है, तो सिस्टम को स्टेबल कर रहे हो, तो सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, राइट? ये सिस्टम Yeah. स्टेबल बन रहा है, तो सिस्टम जब स्टेबल बनता है तो सिस्टम क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, Release. रिलीज करता है। जब ओवरलैप होता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि सिस्टम स्टेबल बनाया जा रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, लेट अस सी दैट, वो समझो। देखो, देखा राइट? ओके, नाउ टेल मी, जो मैंने इसको हाईलाइट किया वो पार्ट आपको समझा या नहीं समझा? हाँ, sir. The increased electron density decrease the nuclear repulsion. Energy is released during overlapping of the Orbit. orbitals. ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्या बोला था हम लोगों ने? जितना ओवरलैप स्ट्रांग होगा उतना एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, और इतना एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, राइट? Yes. तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड Bond फॉर्म। formed. और 100% ओवरलैपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है. नहीं है, बिकॉज इफ यू मेक 100% ओवरलैप, टू न्यूक्लियस विल टच ईच अदर, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट Possible. 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 Okay, point number 4. Point number 5. The class, nitrogen has 3 unpaired electrons, so it can form 3 covalent bond, right? Yes. Oxygen has 2 unpaired electrons, it form 2 covalent bond. Fluorine has only 1 unpaired electron, it form only one unpaired one covalent bond. So see this underlying thing. Tell me, ये clear है? Number of bond form will be equal to number of half-filled orbitals. Class, half-filled orbital and unpaired electrons are one and the same thing. So if atom has only one half-filled orbital, it can form only one covalent bond. If atom has 2 unpaired electrons, it can form 2 covalent bond. If atom has 3 unpaired electrons, it can form 3 covalent bond. Covalent bond. Okay. So then I told you, when electron get shared, so nucleus repulsion, electron nuclear attraction. So attraction force and repulsion force क्या हो जाएगा? Completely balance हो जाएगा, right? So class, that word, the proper word, scientific word for that is the equilibrium distance, right? So what is equilibrium distance? मतलब जब दो एटम के बीच जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो दोनों एटम के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स क्या हो गया, परफेक्टली बैलेंस हो गया। बराबर है? Yes, sir. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ने क्या बोला था समझो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, राइट? तो न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस रिपल्शन, राइट? Yes. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन Attraction. अट्रैक्शन। तो व्हेन अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स परफेक्टली बैलेंस होगा तो एक जगह पे एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहाँ पे दोनों न्यूक्लियस क्या आएंगे, एक जगह पे रुक जाएंगे, राइट? अब इसके और पास नहीं आ सकते और इससे और दूर नहीं जा सकते, राइट? तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड कौन सा केमिस्ट्री में बैलेंस के लिए? इक्विलिब्रियम। बोले इक्विलिब्रियम मतलब जितना अट्रैक्शन है उतना ही Repulsion. रिपल्शन है, तो परफेक्टली एक जगह पे दोनों न्यूक्लियस रुक जाएंगे। ओके, एंड सिस्टम बिकम Yes. स्टेबल, एनर्जी बिकम मिनिमम, सिस्टम बिकम स्टेबिलिटी बिकम मैक्सिमम। देखो ये पूरा पॉइंट नंबर 6, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी, जस्ट गो थ्रू। कोई तो पढ़ो जोर से इसको।
The distance at which the attractive and repulsive forces balance each other is the equilibrium distance between the nuclei of the bonded atoms. At this distance, the total energy of the bonded atoms is minimum and the stability is maximum. Right? So when all the forces are balanced, so उस distance AB पे stability is maximum and energy is minimum. Right? Okay, class 7 point I'll discuss when I take the example. 7 point. Don't worry about 7 point. Class 8 point I will discuss now. हाँ, प्ले एक बार रीड करो फिर आई एक्सप्लेन यू द 8 पॉइंट. अब जस्ट आप खुद के लिए रीड करो आराम से. जस्ट गो थ्रू. अगर आपका पढ़ के हो गया तो एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 8 नाउ. हो गया सर. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. मैं इसको मिनिमाइज करके रखता हूँ. सॉरी, वन नोट. क्या पढ़ा था आपने 8 पॉइंट में, बताओ मुझे. एनीबॉडी? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ. S orbital can make the bond with at any direction. ओके, तो क्लास मुझे क्वेश्चन. ओके ठीक है, आप वेरी गुड. तो मुझे क्वेश्चन है, ये एस ऑर्बिटल राइट. ओके, कैन आई शो एस ऑर्बिटल इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस? Yes. Yes. नहीं दिखा सकते बच्चे लोग. इसका पर कोई वो डायरेक्शन? बोला है ना सर, कोई भी डायरेक्शन में. हाँ, मुझे तो नहीं, मतलब समझो, बोलता हूँ मैं, समझो ये समझो मेरे पास ये ऑर्बिट है राइट. ये कौन सा ऑर्बिट है? पी ऑर्बिट राइट. और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस राइट. प्लस में पी ऑर्बिट को उठा के यहाँ पर रखो तो क्या एक्स एक्सिस पे हो गया है ना. एक्स एक्सिस, आई कैन शो इट ऑन एक्सिस. ओके, तो क्लास अगर उसी जगह पे अगर मैं इस एस को उठाता हूँ ठीक है और रखता हूँ, बताओ मुझे कहाँ पे हो? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड पे, वो तीनों पे राइट. Yes. तो हम लोग एस ऑर्बिटल का शेप क्या है? स्फेरिकल. तो स्फीयर को हम लोग डायरेक्शन नहीं देख सकते हैं. स्फीयर इज डायरेक्शनलेस राइट. एग्री? Yes, sir. तो क्लास अगर एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ? एस के साथ. तो क्लास वो कौन सा डायरेक्शन कर सकता है? यहाँ से कर सकता है, बोलो हाँ. हाँ sir. क्लास वो यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, Yes. वो यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, वो यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, वो आगे से कर सकता है, पीछे से, वो किधर से ओवरलैप कर सकता है राइट. Yes, sir. हम लोग बोल नहीं सकते कि एक्स एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है, वाई पे हो रहा है, जेड पे हो रहा है. वो ओवरलैप कहाँ पे हो सकता है? कोई भी डायरेक्शन से हो सकता है, बिकॉज दोनों का शेप क्या है? स्फेरिकल राइट. स्फीयर क्या होता है? सिमेट्रिकल डायग्राम है. तो अब एक स्फीयर को किधर से भी ओवरलैप कर दूसरे स्फीयर के साथ, हाँ या ना. हाँ. तो अगर इसका देखो आप समझो ये एस ऑर्बिटल है, उसके साथ ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो ये कैन इट ओवरलैप इन एक्स एक्सिस? Yes. Yes. Can it overlap on y-axis? Yes. Can it overlap on z-axis? Yes, sir. Can it overlap from any axis? किधर से ओवरलैप कर सकता है? Yes. तो स्फीयर के साथ किधर से ओवरलैप कर सकता है? कर सकता है. Yes, sir. तो s का ओवरलैप s के साथ कभी डायरेक्शनल नहीं होता. s cannot overlap with s in any direction. Direction. ओके, तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ s को p के साथ ओवरलैप करता, चलो और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं. s ओवरलैप विद p, s ओवरलैप विद p. देखो केयरफुल देखो, ये p ऑर्बिटल है. तो क्लास p s का कहाँ से ओवरलैप? यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, या फिर यहाँ से कर सकता है, यहाँ से किधर से भी कर सकता है. p s के साथ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, बराबर ना. हाँ सर. तो s के साथ ओवरलैप या फिर s का p के साथ ओवरलैप कैसे हो सकता है? डायरेक्शनल लेस, नो डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन राइट. पर अगर मैं बात करता हूँ p का p के साथ ओवरलैप का, मैंने समझा px ऑर्बिटल है, ये px है और ये py ऑर्बिटल है राइट. ये ओवरलैप नहीं कर सकते राइट, क्योंकि ये कहाँ पे एक्सिस पे और ये कहाँ पे Y. एक्सिस पे. तो डायरेक्शन किसको होता है? सिर्फ p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल को. s ऑर्बिटल का ओवरलैप कभी डायरेक्शन के साथ नहीं होते. आर यू क्लियर? Yes. s का ओवरलैप डायरेक्शन नहीं होता. किसका ओवरलैप डायरेक्शन होता है? p का एंड d का. क्लास का सिंपल लॉजिक है क्या, हम लोग p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल कहाँ पे दिखा सकते हैं? एक्सिस पे दिखा सकते हैं राइट.
तो उनका ओवरलैप कैसे होगा, पर्टिकुलर एक्सिस पे होगा, पर एस को हम लोग कोई एक्सिस पे दिखा सकते हैं, एस कोई भी एक्सिस पे, एक्स पे या वाई पे या जेड पे नहीं। तो एस का ओवरलैप क्या होता है, डायरेक्शनल लेस होता है। ओके, नहीं समझा Yes, तो sir. समझा दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको और तरीके से समझाऊंगा। चलो अभी देखते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, बिफोर आई प्रोसीड टू नेक्स्ट थियरी। टाइप्स ऑफ ओवरलैप बहुत सिंपल है। टाइप्स ऑफ ओवरलैप, ओके। चलो मेरे पास एस ऑर्बिटल है, मेरा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, बहुत बार किया हम लोगों ने। हाफ फील्ड है, बोलो जल्दी। Yes, sir. क्या हाफ फील्ड है। मेरे पास और एक हाइड्रोजन है, 1s1, वो भी हाफ फील्ड है। Yes, sir. ओके, तो बस क्वेश्चन, क्या दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड इस ऑर्बिटल का ओवरलैप कर सकता है या नहीं कर सकता, हाँ कर कर सकते सकता है। तो इसका स्पिन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करो, इसका एंटी अभी तो ओवरलैप पॉसिबल है, पक्का है, बराबर है। यस यस तो ये एच आइटम है, ये भी एच आइटम है, दोनों देखो एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, राइट। प्लस क्या वो एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन में आ रहा है या अलग अलग, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। आर दे वन कमिंग ऑन, डायरेक्शन हाँ, आर दे कमिंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे आ रहा है। यस तो क्लास जब एक ही लाइन पे ओवरलैप होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोएक्सियल ओवरलैप, क्या बोलते हैं इसको, कोएक्सियल ओवरलैप। तो क्लास सिंपल बताता हूँ आपको, आपके पास एक कार है और ये दूसरा कार है, उनका जो एक्सीडेंट होगा, ठीक है, सब ऐसा एक्सीडेंट होगा। तो क्लास क्या वो एक्सीडेंट एक ही लाइन में हो रहा है, हाँ सर हाँ तो क्लास ये ओवरलैप कैसा है आपका, कोएक्सियल। कोएक्सियल ओवर प्लस ये ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, strong स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग प्लस समझो एक कार है ऐसा जा रहा है और बाजू से एक कार आया, दोनों में टक्कर हुआ साइड वाइज, समझा आपको, साइड वाइज टक्कर हो गया, हाँ यस दोनों ने ओवरटेक करने की कोशिश किया, साइड से ओवरलैप हुआ। देखो ये कैसा हुआ, एक यहाँ से आ रहा था, एक यहाँ से आ रहा था, ये ओवरलैप यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे और साइड वाइज ओवरलैप हुआ। तो प्लस इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल ओवरलैप, कहते हैं इसको, पैरेलल या ओवरलैप फिर इसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैप, क्या बोलते हैं इसको, लैटरल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप या फिर लैटरल ओवरलैप। ठीक है क्लास, मुझे आता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है, कोएक्सियल या फिर लैटरल, कोएक्सियल कोएक्सियल। तो क्लास ओवरलैप स्ट्रांग होगा वीक होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग होगा। तो जब ओवरलैप बहुत स्ट्रांग होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो भी स्ट्रांग होता है, और जब कोएक्सियल ओवरलैप होकर बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, व्हेन ओवरलैप कैसा होता है, कोएक्सियल। और जब बॉन्ड बनता है, केयरफुल है, एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपने सुना रहेगा, मुझे बताओ क्या सुना था आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब ओवरलैप होगा कौन सा, कोएक्सियल, एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप करेगा, कोएक्सियली। तो जो ओवरलैप हुआ ये दिख रहा है आपको ओवरलैप, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, प्लस दैट बॉन्ड विल बी स्ट्रांग और वीक, स्ट्रॉन्ग strong, and plus such bond is called as the sigma bond. I think you have heard about sigma bond. यस सर तो बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। strong तो क्लास यहाँ पे किसने ओवरलैप किया किसके साथ, एस ने, और एस ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया किसके साथ, एस ऑर्बिटल के साथ। ऑर्बिटल के साथ तो इस ओवरलैप को बोलते हैं हम लोग एस एस ओवरलैप, क्या बोलते हैं इसको, एसएस ओवरलैप ये क्लियर है आपको, एस एस ओवरलैप, यस यस ओके। प्लस समझो मेरे पास हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है आपको, सबके पास हाइड्रोजन दिख रहा है, ये एटॉमिक नंबर 1, राइट। तो सॉरी एक मिनट, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये ठीक है, बॉन्ड बना सकता है यस पक्का, यस ओके बना सकता है क्योंकि इसका क्या है, हाफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके क्लास, मेरे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, क्या फ्लोरीन बॉन्ड बना सकता है, यस सर क्यों, because it have half filled orbit विच ऑर्बिटल, 1s2 valence 2s2 2p 5, राइट। 5 yeah तो px फुल फील्ड, py फुल right. फील्ड, pz हाफ फील्ड, राइट। half yeah ये CPZ ऑर्बिटल हाफ फील्ड है कौन सा, pz। PZ pz
तो बॉन्ड बना सकता है। Yes. हाँ, व्हाट इज शेप ऑफ p orbital? शेप ऑफ p orbital इज टम्बल। बराबर, तो ये pz ऑर्बिटल बराबर है किसका? फ्लोरीन का। ये सेंटर में न्यूक्लियस बराबर है। ओके, आई होप ये समझ रहा है आपको। Yes. क्या दोनों का स्पिन अपोजिट है? Yes. ओके, ओवरलैप कर सकते हैं फिर। Yes. ठीक है, जब ओवरलैप करेंगे तो टेल मी दिस ओवरलैप इज कोएक्सियल या लैटरल? Coaxial. कोएक्सियल, सामने सामने से टक्कर हो रहा है बराबर है। Yes. बराबर, सामने सामने यू कैन इमेजिन, देखो ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ओवरलैप कैसा हो रहा है? कोएक्सियल ओवरलैप या फिर एक्सियल ओवरलैप। तो जब ओवरलैप होगा, क्लास देखो केयरफुली क्या होता है, कैसे होता है। तो जब ओवरलैप होगा, एक मिनट सॉरी, तो आपका हाइड्रोजन है बराबर है, Yes. और आपका फ्लोरीन है। ओवरलैप किया, सॉरी जाओ, ये फ्लोरीन ओवरलैप हुआ हाइड्रोजन फ्लोरीन केज में बराबर है। तो बस किसने ओवरलैप किया किसके साथ? एस ने, एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के Px साथ orbital. ओवरलैप, पी के साथ ओवरलैप किया, राइट। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इज कॉल्ड एज द sp ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? SPO. sp ओवरलैप। तो s का s के साथ ss ओवरलैप, s का p के साथ sp ओवरलैप। ये समझे आपको sp ओवरलैप? Yes. ओके क्लास, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग होती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? वो पूरे p ऑर्बिटल में फैला हुआ है, राइट। Yes. तो जब p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है इसके साथ तो क्या होता है? वो अपना मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे लाएगा? इस साइड पे लाएगा। आई शो यू Bond. कैसे होता है। ये बॉन्ड बनाने के लिए बराबर है। Yes. तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो ये डेंसिटी यहाँ पे बढ़ता है और यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। ये समझा नहीं समझा बता मुझे। समझा सर। ये छोटा, ये लोग छोटा क्यों हो गया? क्योंकि उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे लाया? बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए इस तरफ लाया बराबर है। Yes. Yes. और एस का क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि एस कैसा है? सिमेट्रिक है, राइट। तो उसको फर्क नहीं पड़ता। एस का भी होगा पर उसका पी का शेप पूरा चेंज हो जाएगा बराबर है। Yes. तो ये कौन सा ओवरलैप है? sp ओवरलैप। तो क्लास कौन सा बॉन्ड बना हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में? कौन सा बॉन्ड बना? HF बॉन्ड बराबर ना। Yes. ओके क्लास, ये बॉन्ड सिग्मा या पाई बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड ना। ये ओवरलैप कैसे हुआ? कोएक्सियल। Coaxial. तो एस पी के साथ ओवरलैप करके क्या बना? क्या बना बोलो? सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैप कौन सा था? sp ओवरलैप बराबर है। हाँ सर। क्लास थर्ड ओवरलैप देखते हैं। क्लास क्या फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? वापस क्वेश्चन, फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? हाँ। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? pz ऑर्बिटल, PZ orbital. जो क्या है? हाफ फील्ड है, राइट। ये फ्लोरीन है आपका, जिसका pz ऑर्बिटल कैसा है आपका? Half filled. हाफ फील्ड है। ये फ्लोरीन है जिसका pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड है बराबर है। ये pz ऑर्बिटल फ्लोरीन का है। क्लास ऐड एक वन मोर फ्लोरीन, क्लास उसका भी pz ऑर्बिटल कैसा है बोलो? Half filled. हाफ फील्ड है। तो क्लास क्वेश्चन, क्या एक फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के pz के साथ ओवरलैप कर सकता है? No. क्यों नहीं कर सकता? सब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कर सकता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन का हाफ फील्ड दूसरे फ्लोरीन के साथ हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता? कर सकेगा ना, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं लगता आपको? क्यों लगता है नहीं करेगा? आपको लगता है वो बोलो मुझे आप पहले। सर स्पिन अलग हो सकता है ना, नहीं सेम हो सकता है ना। अगर से अपोजिट होगा तो दोनों का स्पिन अपोजिट है। अभी देखो मैंने स्पिन भी कैसे दिखा, एक क्लॉकवाइज दिखा रहे, कैसे दिखा आपको? एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपको डाउट लग रहा है यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो सकता? ये सब बोलो, बिंदास बोलो, जो डाउट होगा हाँ मैं सर। आपको लगता है ओवरलैप नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए अभी? होगा ना सर, होना होगा चाहिए। होगा क्योंकि ऑपोजिट है ना। हाँ, क्या देखो जितना कंडीशन सब सेटिस्फाइड है, दोनों भी ऑर्बिटल कैसे है? हाफ फील्ड है। दोनों का इलेक्ट्रॉन कैसा है? अपोजिट स्पिन कर रहा है बराबर है। दोनों में इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में है, तो सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ए पीजेड किसका? फ्लोरीन का। इस फ्लोरीन के साथ क्या करेगा?
ओवरलैप करेगा, राइट, और बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ बोलो। ये जो पहला फ्लोरीन है उसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया और इसने पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, बराबर है, बॉन्ड बनाने के लिए, हाँ या ना। हाँ सर, यस। तो उसके जैसे क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन से पूरा शिफ्ट करने की वजह से तो ये आपका pz ऑर्बिटल यहाँ पे, ये न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, बराबर है। तो न्यूक्लियस के इस साइड पे पूरा डेंसिटी शिफ्ट हुआ और सेकंड केस में न्यूक्लियस के इस शिफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा शिफ्ट हुआ, राइट, और बॉन्ड बना, राइट। इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन गेट पेयर। तो क्लास कौन सा मॉलिक्यूल बना, F-F, हाँ। तो फ्लोरीन कैसे लिखते हैं हम लोग, F2 लिखते हैं, बराबर ना, हाँ सर। फ्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लास ये ओवरलैप कैसे, कोएक्सियल या लैटरल है, कोएक्सियल। तो इसका बॉन्ड का नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड का हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। हाँ बोलो बच्चे लोग, क्या कुछ पूछा किसी ने अभी, नो सर। ओके। हाँ क्लास अभी अपने शायद ये देखा रहेगा, हम लोग सीखेंगे बाद में बहुत डिटेल में, पर मुझे फिलहाल आपको बताऊं, अपने मॉलिक्यूल देखा है कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ। तो यहाँ पे जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा, और एक क्या होता है, पाई पाई बॉन्ड। एंड सिग्मा, या। हाँ तो प्लस जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है आपको बता, जब कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब दो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो मैं आपको बताइए, हम लोग सीखेंगे बहुत डिटेल में। तब क्या होता है, कार्बन का पी ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, कोएक्सियली, राइट। यस सर। ओके, पर क्लास जब पाई बॉन्ड बनता है, जब पाई बॉन्ड बनता है तो कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, कार्बन का एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है कार्बन के दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ, कैसे, मुझे तो ये ओवरलैप कोएक्सियल है या पैरेलल है, Parallel. और इसका दूसरा वर्ड कौन सा करते हैं हम लोग, लैटरल। Lateral. तो ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, राइट, साइड से, वो साइड से टकरा रहा है, जैसे अपना ऊपर जो दो कार टकरा था, याद है आपको, दो कार साइड वाइज टकराया था, मुझे तो ये कैसे ओवरलैप था आपका, कोएक्सियल, बराबर ना? कोएक्सियल, यस सर। और ये ओवरलैप कैसा था, पैरेलल। पैरेलल, बराबर, पैरेलल या फिर लैटरल, एग्री। तो सिमिलर ये दो हाइड्रोजन कैसे, ये दो पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, लैटरल। लैटरल। हाँ पैरेलल लैटरल दोनों भी चलता है। हाँ सर। तो जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड विल बी वीक बॉन्ड कंपैरेटिवली कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड। प्लस लैटरल, मुझे था लैटरल ओवरलैप होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा कम होगा, देखो जब दो कार सामने सामने टकराएंगे तो एक्सीडेंट बड़ा होगा, से कम होगा। हाँ तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे कैसे ओवरलैप कैसे हो रहा है, वीक कम हो रहा है, ओवरलैप कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम रिलीज होगा, और एनर्जी कम रिलीज होगा तो बॉन्ड कैसे होगा, वीक। कंपैरेटिवली वीक होगा। तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। प्लस सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब पी ऑर्बिटल दूसरे पी के साथ कैसे ओवरलैप करता है, कोएक्सियल, राइट। कोएक्सियल, हाँ। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लैटरली। पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किसके साथ, पी के साथ, कैसे, लैटरली। देखो एस ऑर्बिटल किसी के साथ भी ओवरलैप करे कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, एस ऑर्बिटल किसी के साथ ओवरलैप करे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस ऑर्बिटल हमेशा कैसे ओवरलैप करता है, कोएक्सियली, किसके साथ भी करे, एस ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप कोएक्सियली, एस ऑर्बिटल कभी भी लैटरली ओवरलैप। प्लस लैटरल होने के लिए प्रॉब्लम उसका शेप ही स्फेरिकल है, तो कहां से ओवरलैप करे क्या होगा, कहां से ओवरलैप करे क्या होगा, कोएक्सियल। कोएक्सियली होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर। ओके तो क्लास तो हमने सीखा टाइप्स ऑफ ओवरलैप आज, कौन सा, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप। एसपी ओवरलैप एंड पीपी ओवरलैप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वीबीटी का लिमिटेशंस क्या है, एंड वी गो फॉर नेक्स्ट थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर एब्सेंट मत रहना, आई विल टेल यू द ट्रिक्स आल्सो, हाइब्रिडाइजेशन फॉर जे डबल नीट में आपको ट्रिक्स, थोड़े बहुत ट्रिक्स भी सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस थियरी कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। क्यों सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कि वीबीटी में बहुत सारे लिमिटेशंस है। देखो ऑक्टेट रूल में लिमिटेशन थे इसलिए क्या गया वीबीटी, राइट। वीबीटी में लिमिटेशन तो इसके लिए क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में लिमिटेशन तो इसके लिए क्या आएगा, लास्ट ईयर आएगा चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक के बाद एक थियरी हम लोग
रिवील करते जाएंगे. ओके, Yes, sir. स्टॉप हियर. कुछ पूछना आपको बिफोर आई लीव? ठीक है क्लास, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. चलो वीबीटीएम नाउ देखो, हमने यहाँ पे अमोनिया में एंगल कितना प्रेडिक्ट किया था वीबीटी ने? हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 90. 90 डिग्री. क्लास बट एक्चुअली बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज 107 approximately 0.5 डिग्री सेल्सियस. आई एम रियली सॉरी. हाँ, तो इतना एंगल है. तो क्लास ये एंगल थियोरेटिकल 90 है, पर जब एक्सपेरिमेंट करके मतलब जो आप जब इंस्ट्रूमेंट से एंगल देखते हो तो रियल एंगल कितना है? 107.5 degree. तो वीपी ने जो एंगल प्रेडिक्ट किया था रॉन्ग था या करेक्ट था? Wrong, sir. रॉन्ग था. ठीक है क्लास, मिलर में वाटर में एंगल देखा कितना था? वीपी ने प्रेडिक्ट कितना किया था? 90 डिग्री. बट व्हेन यू सी द एक्चुअल बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, HOH बॉन्ड एंगल इज 104.5 अप्रोक्सीमेट. मैं बता रहा हूँ. तो क्लास जो एंगल वीपी ने प्रेडिक्ट किया था, राइट या रॉन्ग है? रॉन्ग है. क्लास आप बोलोगे ये कैसे राइट है? क्लास ये एंगल आप बोलोगे ये कैसे राइट है, फिर ये कैसे बता? तो क्लास ये एंगल कहाँ पे देखा गया है? इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर. क्लास इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग आंसर नहीं देगा आपको. No, ये एंगल sir. तो ये तो प्रेडिक्ट किया गया है, पर ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एंगल आपको दिख रहा है एग्जैक्टली. तो बॉन्ड एंगल मतलब इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप. तो स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो एंगल दिखता है HOH वो एग्जैक्टली कितना? 104.5. तो रियल एंगल इतना है और वीपीटी प्रेडिक्ट करता है 90. तो क्लास वीपीटी का एक सबसे बड़ा फेलियर क्या है? वीपीटी बहुत सारे केसेस में बॉन्ड एंगल को रॉन्ग प्रेडिक्ट करता है, राइट? बहुत सारे केसेस में. तो वो बॉन्ड एंगल का राइट प्रेडिक्शन के लिए हमें हाइब्रिडेशन का जरूरत लगेगा. आर यू क्लियर? हाँ, sir. ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी. पर आपको फिलहाल वीबीटी समझा, एक बार पढ़ लो एक बार वीबीटी अच्छे से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, तो स्टॉप हियर.